is blessed to have experienced innumerable amount of interviews with Swami. She has been a Sevadal member since 1999 every year unremittingly and is also serving as Joint Sevadal coordinator for the state of UP. Her father, Sri R.C. Singhal, was one of the first few devotees in Meerut. He was also one of the main initiators for organizing Bhagwan's divine visit to Meerut and North India, and also a key instrument for building the school in Rishikesh. He had a divine privilege to sit in Bhagwan's lap, which brings me to the incidents of Swami's only visit to Meerut. Taking a bit of your time, let me narrate the anecdote. As I mentioned before, Sri R.C. Singhal was one of those who were organizing Swami's visit to North India. So, taking that opportunity, once he requested Swami to visit Meerut as well on the way. However, Swami seemed a bit unwilling, so few of other devotees from Meerut who were also present there at the time persuaded Swami, and finally Swami relented and said, "Let us see." So, on the way back from Delhi, Swami had to make a pit stop in Rishikesh, and because there was still unsure about Swami's plan to visit Meerut, all the arrangements were still made. Sri R.C. Singhal was at that time traveling in a car behind Swami's car, but somehow one of the tires from Uncle's car got punctured. So Swami stopped his car as well and asked Uncle what happened, and Uncle informed Swami that Swami, the car got punctured. Listening to this, Swami gave a typical mischievous smile and asked Uncle to accompany him in his car and made Uncle sit on his lap. Then Swami asked the driver to change the route and directed him in such a way that the car had to pass right in front of Uncle's house. Swami stopped the car for a few seconds and turned to Uncle. He said, "I know this is your house, but there are so many people inside. But don't worry, I will bless your house from here only." And then Swami went to the stadium in Meerut. But, brothers and sisters, what happened inside the house at that time when Swami spoke of blessing the house is what gave me goosebumps. At that time, when Swami blessed the house shook violently, along with the members present inside the house with the magnitude of a strong earthquake. And Swami also emerged out from the house. I'm still having goosebumps narrating this. And I'm sure listening to this incident has made you all more curious and eager. So, not taking much of your time anymore, I welcome Shri Anju Singhal. She will share her much more memories with all of us. Over to you, sister. Jai Sai Ram. भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। आवाज आ रही है मेरी ठीक? साई Yes, राम। sister. Yes, sister. Sai Ram. ओके ओके। मैं आज की शुरुआत गणित वंदना से करना चाहूंगी। गणनां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणामणस्पत् आनः शृण्वन्नोतिभिः सादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिन् वाजिनीवती धीनां वित्रवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। आज का दिन वास्तव में मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है। जब मेरे से ओशो ने कहा कि मैं भगवान के साथ व्यतीत किए गए अपने मधुर एक्सपीरियंसेस को आप सबके साथ शेयर करूं, मैंने तो यही सोचा कि शायद ये भी भगवान की कोई लीला ही होगी जिसे वो संपूर्ण होते देखना चाहते हैं। 60s की बात होगी जब मैं अपने मम्मी पापा की गोद में ही थी। पुट्टपर्ती जाने का अवसर मिला
साल में 2 बार या 3 बार हम लोग पुट्टापर्थी जाया करते थे। ये बात मुझे अपने बड़े होने पर पता चली कि उस समय भगवान ने हमें अनगिनत इंटरव्यू दिए और बाबा ने मेरी मदर श्रीमती प्रेमनी देवी, जिनकी वजह से शायद हम भगवान के फोल्ड में आए थे, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहा करती थी और पापा रेलवे में थे। उन्हें अपनी जर्नी में ही कुछ डिवोटीज मिले और उन्होंने कहा कि वहां ले जाओ और वो सब बीमारों को ठीक कर देते हैं। तो पापा ने वहां जाना शुरू कर दिया था। हुआ भी ऐसा कि एक बार भगवान ने माँ से कहा कि मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, लेकिन जो मेरी मदर हैं उन्होंने कहा, स्वामी मुझे ठीक नहीं होना, मुझे तो मोक्ष चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा कि यदि अभी तो मैं आपको ठीक कर दूंगा, लेकिन बाद में और किसी जन्म में तुम्हें अपने सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। इसीलिए मम्मी ने मोक्ष की कामना की। जब मम्मी ने ये कहा कि स्वामी मुझे तो मोक्ष चाहिए, तो स्वामी ने क्या कहा, तथास्तु। और साथ ही साथ भगवान ने एक, स्वामी ने एक जो कॉइन है, एक छोटा सा कॉइन मम्मी को दिया कि रोज आप इसको वॉश करके पीना और ठीक रहेगी आपकी तबीयत। अब समय बीतता गया। 1993 में मेरी मदर की जब मृत्यु हुई, तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि उस समय मम्मी ने इतना कष्ट, शी वॉज सिक इन अप्रैल आफ्टर होली, और जब दिसंबर में उनकी डेथ हुई है, तो शायद उन्होंने जीवन के सबसे ज्यादा कठिन कष्ट शायद उस समय भोग लिए होंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि शायद भगवान ने उनको मोक्ष दिलाने के लिए उन्हें इतने सारे कष्ट दिए हैं और अब उनको अपने पास बुला लिया। जब हम स्वामी के फोल्ड में आए, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी बड़ी सिस्टर बताती हैं कि जब कभी हम इंटरव्यू रूम में जाते थे, तो स्वामी, पता होगा आप लोगों को कि जब स्वामी इंटरव्यू रूम में ले जाते थे, तो एक अपने रूम में जाके बिठा देते थे और एक कर्टन होता है उस, जो स्वामी के घर में ऊपर जाता है, उस कर्टन के पीछे सबको ले जाते थे। तो हम सब लोग सीढ़ियों पे खड़े हो जाते थे और स्वामी फिर बात करना शुरू कर देते थे। तो मैं तो छोटी थी, मैं नीचे खड़ी रह जाती थी, तो मैं भगवान का चोगा पकड़ के ऐसे करके स्वामी को ऊपर मुँह करके देखती रहती थी। ऐसा मेरी मम्मी बताती है कि तुम उसका चोगा खींचती रहती थी प्रभु का। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे ही स्वामी अंदर ले गए बात करने के लिए, तेलुगु में बोलने लग जाते थे, शायद जानबूझकर। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। फिर खुद ही कहते थे, ओ हिंदी हिंदी। तो ऐसे स्वामी खेल भी करते थे हम सबके साथ। पापा बताते थे कि कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे हम लोग शांति नीला पहुंचते थे, उस समय केवल हम लोग, भगवान की पुरानी वाली बिल्डिंग थी, पेड़ों के नीचे अपना सामान रख करके बस स्वामी के घर की तरफ ताकने लग जाते थे कि कब स्वामी बाहर आएंगे दर्शन देने के लिए। हम लोग पहुंचते थे, अभी सामान रख करके ऐसे बैठे होते थे, स्वामी तुरंत निकल आते थे अपनी बालकनी पर और कहते थे, अच्छा सिंगल आ गया, सिंगल आ गया। फिर जब भगवान के यहाँ बार बार पापा जाते रहे, तो स्वामी ने कहा कि मेरठ में समिति बनाओ। और फिर पापा ने यहाँ समिति बनाई, और समिति बनाने के बाद हमारे यहाँ इतना भजन होता था, इतना भजन होता था कि हमारे चौक में कभी पूरी सब्जी बन रही है और भगवान के जो कोटेशंस हैं वो लिखे जा रहे हैं, कभी कहीं एग्जीबिशंस हो रही हैं, कभी कुछ प्रोग्राम होना है, तो सारी तैयारियां आंगन में हमारे होती रहती थी। फिर जैसा कि अभी आपने सिस्टर ने बताया ही, आपको सिस्टर ने, कि भाई जब स्वामी मेरठ नहीं आते थे, दिल्ली तक आ जाते थे, तो यहाँ पर डेवोटीज ने कहा कि भगवान की मेरठ भी विजिट कराएंगे। जब इतनी पास आते हैं, बहुत पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े, बहुत कस्तूरी जी को चिट्ठियां लिखी, फिर बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, मेरे पास अभी भी लेटर्स भी मौजूद हैं। फिर आखिरकार भगवान मान गए और मेरठ आकर हम सबको दर्शन भी दिए। स्टेडियम गए थे वो, और उन्होंने, बहुत भीड़ थी और बहुत जनता आई और बहुत अच्छे से भगवान ने दर्शन दिया, भजन भी गाया था। और ये विजिट थी हमारी 1972 में, भगवान ने विजिट किया था।
और इसी बीच मेरे फादर को हार्ट अटैक भी आया 1972 में। तो बहुत सीवियर हार्ट अटैक था। मेरे उस समय ग्रैंडफादर भी थे और पापा ठीक हो गए, लेकिन वही है हम सभी साई डिवोटीज का, जब ठीक होते हैं तो भगवान के यहाँ दौड़े चले जाते हैं। उसके बाद हम पुट्टपर्ती गए, तो भगवान ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद पापा से बोले, सिंगल हार्ट अटैक आया? स्वामी हाथ पापा हाथ जोड़ के बोले, हाँ स्वामी। तो बोले, मैं बचाया, मैं बचाया। और उस समय पापा 2 पॉकेट्स वाला शर्ट पहना करते थे। लेफ्ट साइड के पॉकेट के लिए स्वामी ने एक हाथ से एक अपना कार्ड मेटेरियलाइज किया और पापा के लेफ्ट पॉकेट में रख करके बोले, अब कभी नहीं आएगा, अब तुमको कभी नहीं आएगा। इस तरह से उन्होंने पापा को ब्लेस किया। तो स्वामी का ये वाला ये कार्ड है जो स्वामी ने, इस पे पीछे पापा ने लिखा भी हुआ है, विद इंटरव्यू ऑन 24 दिसंबर 1973। इस तरफ लिखा भी हुआ है पापा ने, इसीलिए मुझे डेट याद भी रह गई। कई बार ऐसा होता था कि घर में हमारे ना स्मेल आने लग जाती थी, बहुत अच्छी, कहीं भी होती थी बहुत अच्छी स्मेल आने लग जाती थी। तो जैसे स्मेल आनी शुरू होती थी, घर के सारे लोग भगवान के कमरे की तरफ दौड़ते थे। और जब भगवान के कमरे में पहुंचते थे तो देखते थे या तो किसी फोटो पर विभूति आई हुई होती थी, या कुमकुम आया हुआ होता था, या अमृत आया हुआ होता था, जल भी आता था। इसलिए हमने अपनी फोटोज के नीचे प्लेट्स भी लगा दी थी कि जो भगवान का जो शहद आता है वो नीचे वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को प्लेट्स लगानी पड़ती जिसमें स्वामी का शहद को हम इकट्ठा कर सके। बस फिर हम सब वहां जाते थे, मम्मी आरती तैयार करती थी और हम सभी लोग मिलकर भगवान की आरती तभी के तभी कर लेते थे। यही मेरा भगवान जी का कमरा है, जो उस समय प्रभु का कमरा होता था। एक बार भगवान ने इस कमरे को ब्लेस भी किया। कैसे? अपने सिग्नेचर करके। हम सब बच्चे छोटे थे तो इसलिए मम्मी अकेले ही राम नवमी वाले दिन ओम श्री राम जय जय राम का पूरा अखंड पाठ किया करती थी पूरे रात अकेले। अब सुबह हुई, मम्मी उठ करके थोड़ा रेस्ट किया और फिर मम्मी जब नहा धो करके दोबारा कमरे में आने लगी तो देखा कि कमरे में विभूति से लिखा है ओम श्री राम। ऐसा लगा ये कैसे विभूति आ गई नीचे, और शायद किसी बच्चे ने कोई शरारत की होगी। बाहर निकल गई, फिर फिर देखा ओम श्री राम जय राम। तो बोले जरूर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, इसीलिए मम्मी ने इस कमरे में ताला लगवा दिया और आराम से जब 12 साढ़े 12 बजे जब इस कमरे को खोला गया तो पूरे कमरे में विभूति से लिखा था ओम श्री राम जय जय राम। और स्वामी की चेयर के पास सिग्नेचर्स थे, साइन। ऐसी बहुत सी यादें भगवान के साथ। एवरी थर्सडे हमारे घर में भजन होता था, बहुत भीड़ लग जाती थी। लेकिन अकस्माती 1975 में मेरे ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई। पापा अकेले थे, मम्मी भी बीमार रहती थी, घर में दादी जी भी थी, और फिर धीरे धीरे हमारा पढ़ती जाना छूट गया। हम छोटे थे, हम भी अपने में रम गए और भजन में चले जाया करते थे कभी कभी। मैं आप ये कह सकती हूँ कि मतलब हम लोग काफी, भगवान तो याद थे कि हाँ भगवान की पूजा हो रही है, पापा रोज हर थर्सडे भजन भी कर रहे हैं, समिति में नहीं जा पा रहे थे। फिर सब अपनी अपनी जिंदगी बिजी हो गए। इसी बीच भगवान ने जैसे दोबारा जोड़ना था 1998 में हमारी गली में 25 दिसंबर का प्रोग्राम था और वहाँ स्वामी का भजन भी था और सब बहुत सारे सारे डिवोटीज आए। और जब उन्हें पता चला कि हमारा घर उसी गली में है तो सब उस प्रोग्राम के खत्म होने पर हमारे घर आ गए और उन्होंने पापा से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मेरी मदर तो थी नहीं, उनकी डेथ तो पहले ही हो चुकी थी। अब क्या है, उसके बाद तो सब लोग बार बार आने लगे, और जिसमें कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे ओशो साई के पेरेंट्स और एक आंटी हैं, वो लोग लगातार हमारे घर पर
आते रहे। अब इसी बीच जून सेवा का समय आया और उन लोगों ने पापा पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि अंकल जून सेवा में चलो। पापा बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, बच्चों को ले जाओ, और पापा ने कहा अंजू को ले जाओ। और इस तरीके से मेरी प्रशांति सेवा शुरू हो गई 1999 में, और लगातार तब से 2019 तक मैं अपनी सेवा में जाती रही हूँ। अभी आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली 2 साल से इस कोरोना एपिडेमिक की वजह से हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है। पता नहीं भगवान ने भी क्या सोचा है, कब बुलाएंगे। अब 1999 में जब इतने सालों बाद प्रशांति जून सेवा में जाने का अवसर मिला तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि बचपन में तो आई वॉज वेरी स्मॉल, कुछ भी याद नहीं था। पापा से पूछती थी, कुछ कुछ भी याद नहीं था बचपन का, तो भगवान का मंदिर कैसा है कैसा है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो जो फीलिंग आई उसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ पहुंच गए। और सेवा शुरू की, इतनी कठिन सेवा की खूब अच्छे से काम करवाया गया। पूरे दिन लगे रहे, गर्मी में बिना फैन के डोमट्री में सोना, खाने पीने का भी काफी परेशानी रही। फिर भी एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि अगले साल नहीं आना। खूब मन लगाकर किसी सेवा किया 1999 का। अच्छा है भगवान ने उस साल बुला लिया, क्योंकि वही साल तो था 1999 जब भगवान ने आखिर बार सेवा दल को पाद नमस्कार दिए थे। और वास्तव में हम उस पाद नमस्कार के, जो भगवान ने अपने पैर छूने का हमें अवसर दिया, उसका हिस्सा बने। बहुत प्यार से भगवान ने पाद नमस्कार दिए, चरण स्पर्श करवाए। उससे रिलेटेड भी एक बात मुझे याद आ रही है कि जब स्वामी, पापा को तो पता था कि जब भगवान दर्शन देते हैं तो हम लोग यदि साथ में कुछ भी सामान ब्लेस कराना चाहे तो करा सकते हैं। तो पापा ने कुछ फोटोग्राफ्स दिए थे कि तुम ये ब्लेस करा लेना। हम तो वही पहली बार बैठे हैं पाद नमस्कार के लिए, तो जो हम बैठे थे, स्वामी आ रहे थे, हम अपने ऐसे पैरों के बल हो गए कि भाई अच्छे से भगवान जी के पाँव छुएंगे। और जो पापा ने दिया था सामान वो गोदी में रखा था। आए भगवान, हमने चरण छू लिए, जो ठंडा ठंडा स्पर्श लगा उसी में खोके रह गए। अब भगवान तो आगे निकल गए। अब मैं ऐसे बैठ गई, अरे अब क्या होगा। भगवान जी, पापा कहेंगे तुमने ब्लेस नहीं करवाया। अब भगवान एक डिवोटी छोड़ के अगले डिवोटी पे गए और ऐसे मुड़ के मुझे देखते हैं और कहते हैं आता आता, और एक पांव पीछे रखा और मैंने ऐसे बढ़ा दिया स्वामी के सामने सामान और उसको ब्लेस किया और चले गए। अब कहना चाहिए कि ये वो साल था जो एक तरीके से तो मेरे लिए खुशी का साल भी था कि भगवान से मिलना हुआ, और जो चीज उस समय मेरी स्टार्ट हुई वो खत्म ही हुई। लेकिन इसी साल नवंबर में मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए, और इस बात का मैं हमेशा भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि पापा को अपने पास बुलाने से पहले उन्होंने मुझे भक्ति का रास्ता दिखा दिया। तब से लेकर लगातार मुझे पड़ती सेवा में, जिसे हम जून सेवा के नाम से भी अक्सर बुलाते हैं, क्योंकि हमारी सेवा तो जून में ही होती है ना, तब से मैं लगातार जा रही हूँ। अब जैसे ही हम पहुंचते हैं तो ऐसा लगता था जैसे कि भगवान हमारा इंतजार ही कर रहे होंगे। अलग अलग सेक्टर्स में सेवा करने का अवसर मिला। कई बार ऐसा भी हुआ, पहुंचे उस समय मिसेस चड्डा फ्रॉम गाजियाबाद, शी वॉज आवर कोऑर्डिनेटर। वो देखती, अरे बेटा आ गए, अच्छा वहां जाना है वहां जाना है। जनरल हॉस्पिटल क्या, चैतन्य म्यूजियम, सेवा दल कैंटीन, वीआईपी गेस्ट हाउस, कुलवंत हॉल, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो उन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया वो था स्वामी का रेजिडेंस। ये सेवा तो शायद हर बार ही करने को मिली, स्वामी के रेजिडेंस पर तो हर बार जाने का मौका मिला। जब मॉर्निंग के समय वहां जाया करते थे, सुबह चले जाते थे 3:30-4 बजे, और हम लोग इतने धीमे धीमे चलते थे, इतने धीमे धीमे काम करते थे कि भगवान जी जाग ना जाए, शोर नहीं करना है, किसी भी चीज की आवाज नहीं करनी है।
बहुत आराम आराम से हम लोग 4:30 बजे तक अपना सफाई करके वहाँ से हमको बाहर आ जाना है। और दोपहर में कई बार जब हम काम कर रहे होते थे तो जो स्वामी के लिए अंदर खिचड़ी जाया करती थी भोजन के लिए उनके, जब वो बच करके वापस आती थी तो हम सब लोग ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते थे। और सच मानिए तो वो जो भगवान की बची हुई खिचड़ी खाने का जो आनंद है, वो टेस्ट आज भी जैसे लगता है ना कि मुंह में बचा हुआ है। और कई बार भगवान दोपहर में कहीं जाने के लिए निकल आते थे, हम लोग सफाई कर रहे हैं, हम लोग वहां हैं, तो बस दर्शन का आनंद ही अलग था। सब हम लोग अपना अपना काम छोड़ के फटाफट भाग भाग करके वहां पर आराम से बैठ जाते थे लाइन में, और स्वामी हमें देखते हुए चले जाते थे। 2007 में 4-5 डेज के लिए मैंने जनरल हॉस्पिटल में भी सेवा किया, 4-5 डेज के लिए। और आपको मैं एक इंसिडेंट अपना 2008 का बताती हूँ। जैसे वो भगवान की प्लानिंग थी, उस साल जो है पड़ती जाने के लिए मेरा रिजर्वेशन तो ऑलरेडी हो ही चुका था, लेकिन तभी 13 मई को मैं मार्केट में गिर गई और मेरे पाँव में मांस फ्रैक्चर हो गया अंकल का और प्लास्टर चढ़ा दिया गया। 28 मई अक्सर हम लोग अपना रिजर्वेशन कराते हैं जाने के लिए, डॉक्टर ने 21 दिन का प्लास्टर चढ़ा दिया। अब जाने का रिजर्वेशन तो कैंसिल हो गया। पैर का प्लास्टर खुला मेरा 2 जून को, और अब मुझे तो ये जिद सवार हो गई कि मुझे तो जाना है। कई जगह मैंने उस समय अभी बेड पर ही थी, फोन मिलाती रही, भाई कौन चलेगा कौन चलेगा, कैसे भी रिजर्वेशन कराओ, मुझे जाना है मुझे जाना है। तो मोदी नगर से एक बहन जाने के लिए तैयार हो गई, उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। रिजर्वेशन तो अवेलेबल नहीं थे, एकदम अर्जेंट, फिर भी उन्होंने अपनी जान पहचान से रिजर्वेशन का थोड़ा सा उन्होंने कर लिया अरेंज। अब जब मैं मोदी नगर गई, मोदी नगर से उन्हें लिया, उनकी छोटी बेटी और वो गए मेरे साथ, हम स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर ही अभी हम रिजर्व वहां पहुंचे ही थे कि तुरंत से ट्रेन में से 2-3 जने आते हैं और हमारा सामान उठा लेते हैं और ले जाकर पेंट्री में रख दिया, पेंट्री कार में रख दिया कि बैठिए बैठिए, अभी आपका रिजर्वेशन का अभी बात हो रही है, हो जाएगी। हमें वहां बिठाया, खूब सारा हमें अच्छे से फ्री में खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, और जैसे कहते हैं भगवान ने वीआईपी ट्रीटमेंट, मेरे से तो पाँव में चला ही नहीं जा रहा था, अभी मेरे पैर में स्वेलिंग भी थी। तो उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि अरे आपका रिजर्वेशन हो गया, सारे के सारों ने हमारा सामान उठाया और फिर हमारे को हमारी सीट पे पहुंचा दिया। और हम वही 2 दिन बाद 12 तारीख को हम चले, 12 का रिजर्वेशन मिल पाया था, कंफर्म नहीं था, और हम लोग पहुंच गए 14 को बाबा के यहाँ। इतना यादगार सफर भगवान ने बना दिया कि लगेज भी नहीं उठाना पड़ा, उठने बैठने की जगह भी आराम से मिल गई, और 16 का वापसी का रिजर्वेशन था। 16 को वापसी मैंने अपना वो रिजर्वेशन तो कैंसिल कराया नहीं था, आराम से ट्रेन में बैठकर अपने मेरठ आ गई। तो जैसे कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा, आप सोचो तो सही, मन में आप संकल्प करो, पूरा मैं करूंगा। आज भी आश्चर्य होता है कि किसी को बताती, कोई कहते कि आप ऐसे पाँव में भी कैसे भगवान के पास तक चले गए। 2014 की जून सेवा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इंसिडेंट था, क्योंकि हमारी उस समय तक गाजियाबाद अलग हो चुका था और हमारी सेवा दल कोऑर्डिनेटर शरण दीदी को बना दिया गया। वो पहुंच चुकी थी पड़ती और हम भी पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक से उनके फादर बीमार हो गए और 1 जून को वापस चली गई। और उसके बाद डॉक्टर कविता भटनागर हैं लखनऊ की, उन्होंने और मैंने मिलकर के दोनों ने महिला सेवा दल के कार्यभार को संभाला। अब हम दोनों ही काम करते थे, सब कुछ था, लेकिन ड्यूटीज देना, टोटली हर सेक्टर में जाके चेक करना, बहुत चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन भगवान की कृपा से हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। 15 जून जब आया और हमने 12 बजे अपनी जो हैंड ओवर करते हैं ड्यूटी नेक्स्ट ड्यूटी वाले को, गुजरात को हमने ड्यूटी को हैंड ओवर कर दी।
और तब हमें लगा अरे 15 दिन हमारे बीत भी गए और भगवान जैसे हर वक्त हमारे साथ रहे और हमारी ड्यूटी को उन्होंने पूरा करवा दिया। फिर 2016 आया, उस जून से तो मुझे शरण दीदी के साथ ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर का काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सेवा के दौरान जब लगने लगता है कि अब कैसे होगा, इतना कम सेवा दल है और हम शायद पता नहीं, हम यूपी वालों के साथ तो अक्सर हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे हमारा सेवा दल बहुत कम है, कैसे काम होगा, हे भगवान हमारी सहायता करो। तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी हेल्प आ जाती थी और हमारा काम चल जाता था। भगवान से हर समय बस ये कहते रहते थे कि हे प्रभु आज का दिन अच्छे से निकाल दो, किसी भी सेक्टर से कोई कंप्लेंट ना आए। कभी गणेश गेट पर जाकर के गणेश जी पर नारियल फोड़ते, प्रभु को मनाते। ये साल भी हमारा अच्छे से निकल गया। एक बार तो भगवान ने 2012 में एक इंसिडेंट और मुझे याद आ रहा है, जिसमें कि जब भगवान ने मेरे समझ लिया प्राणों की रक्षा कर दी थी। जून से वह चल रही थी और तारीख थी 12 जून। मैं कुलवंत हॉल एरिया वीआईपी एरिया में अपने आसन पे बैठी हुई ड्यूटी दे रही थी। भजन चल रहा था बहुत तेज और तभी क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश आने लगी और सारा पानी ये वीआईपी एरिया वो है जो भगवान के जो गेट से जब हम अंदर आते, भगवान जब अंदर आते हैं ना बड़े वाले गेट से जब एंट्री करते हैं कुलवंत हॉल में, उसी में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर तो सारा पानी बह बहकर अंदर आने लगा कुलवंत हॉल में। तो हम कुछ सेवा दल उठ करके उस पानी को बाहर की तरफ निकालने लगे। तभी मेरा पाँव बहुत तेज फिसला और मैं सिर के बल गिर गई। मेरा सिर तो कुलवंत हॉल के अंदर था और मेरे पाँव भगवान के घर घर की तरफ थे। गिरते ही लगा सबको ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। जो वहाँ के डिसिप्लिन इंचार्ज हैं आशा दीदी, वो बहुत घबरा गई, एकदम से कहने लगे हटाओ हटाओ साइड पे कर दो, साइड पे कर दो। उन्हें लग रहा था फिनिश, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे किया मैंने फटाफट अपने आप को ऐसे झाड़ा और उठ करके जा करके अपने उसी आसन पे जाके बैठ गई जहाँ बैठ के ड्यूटी कर रही थी। जब भजन समाप्त हुआ वो वीआईपी एरिया की सारी लेडीज मेरे पास आई और मेरे को ऐसे ऐसे करके कहने लगी अरे कैसे हो, बहुत जोर से गिरा तुम तो, बहुत जोर से गिरा तुम तो, कैसे हो। और फिर मुझे दीदी ने बताया कि जब तुम गिरी थी ना तो तुम्हारे सिर की आवाज जैसे नारियल फूटता है ना, नारियल फूटने जैसी आवाज आई थी। अब इतने तेज भजन के दौरान मेरा सिर बजने की आवाज उन लोगों ने सुनी। सोचो भगवान ने कितनी मुझे रक्षा की होगी मेरी। बस 2-3 दिन शरीर में अकड़न रही, भीग तो गए थे बारिश की वजह से और उससे अभी कुछ भी नहीं हुआ। 16 को वापसी होती ही है ट्रेन से, वापसी का रिजर्वेशन था। घर वापस पहुंचते पहुंचते मुझे मतलब ये याद भी नहीं रहा कि मैं वहां पर गिरी थी। किसी भी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं थी। आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट बाय स्वामीज ग्रेस। इन सब बातों को करते करते 1 साल एक्सपीरियंस है चलो, लेकिन 2011 आप सभी समझ सकते हैं कि ये वो साल था जब हमने अपने भगवान को फिजिकली खो दिया। पता नहीं मैं ये कह रही हूँ हमने खो दिया है, लेकिन फिजिकली तो हमने खो ही दिया। शारीरिक रूप से स्वामी हमारे सामने नहीं आ सकते। हाँ, जब हम कुछ ध्यान करते हैं तो उन्हें चारों तरफ ही पाते हैं। और ऐसा तो तब भी हो जाता था ना जब हम सेवा में जाते थे और भगवान हमारे को कई बार नहीं मिलते थे। जून में आपको पता है ना, मई जून में तो भगवान जी व्हाइट फील्ड चले जाते थे और अक्सर ऐसा होता था कुछ लोग सेवा छोड़ करके दर्शन के लिए चले जाते थे और कुछ लोग अपनी सेवा में लगे रहते थे और इंतजार करते थे कि शायद भगवान प्रति आए और हमें दर्शन दें। और वो कभी कभी शायद हम पर तरस खाकर आ भी जाते थे। लेकिन सच मानिए मुझे कभी इस बात की बेचैनी नहीं हुई कि भगवान यदि पड़ती में नहीं है तो मैं भाग करके बैंगलोर जाऊं और स्वामी के दर्शन करूं,
क्योंकि मुझे लगता था जब मैं उन्हें भगवान मानती हूँ तो वो तो हर जगह है। यदि हम उन्हें प्रभु मानते हैं तो अब तो वो और ज्यादा omni प्रेजेंट हो गए ना। वैसे भगवान के शरीर छोड़ने पर रोना तो बहुत आया था वाकई में। मैंने एक दो जनों से यहाँ पे जिद भी किया था मुझे लेके चलो, और लेकिन साथ ही साथ मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश भी की कि भाई वो तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, वो कहाँ जाएंगे। यही कहकर मैंने अपने मन को भी समझाया, और ये शायद आप सभी मेरी बात से सहमत भी होंगे कि ये सच भी है। स्वामी के फिजिकली ना होने के बाद भी एक बार भी मन में ये नहीं आया कि हमको पढ़ती नहीं जाना है ना। वही रूटीन था, उसी मन से हम पढ़ती जाते रहे, सेवा के बहाने जाते रहे। और जब पढ़ती जाते हैं तो वास्तव में हम रिचार्ज हो जाते हैं। जो भी कुछ हमारे एक साल का जो क्लटर इकट्ठा हुआ होता है, जब भगवान के यहाँ जाते हैं, पहुंचते हैं, तो हम रिचार्ज होकर ही वहां से वापस आते हैं। अब बीच में पिछले 4 सालों से तो मैंने ये भी रूटीन बना लिया था कि पड़ती यात्रा में भी जाना है। जो हमारे 3 दिन की पड़ती यात्रा होती थी, तो वो भी मैंने अब पिछले 19, 18, 17 एंड 16 से पड़ती यात्रा में जाना शुरू किया। तो 4 साल से पड़ती यात्रा भी अभी जाने का मैंने रूटीन बना लिया था, लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या सोचा है कि अब बुला ही नहीं रहे हैं बार बार। 2 सालों से जाने को नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। फिर मानना पड़ता है कि भगवान की तो यही इच्छा है, जब टाइम आएगा तो खुद ही बुला लेंगे। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में जो भी कुछ करो भगवान को अर्पण करके करो, उन्हें फुल्ली सरेंडर कर दो। तो मेरा एक बहुत अच्छा कहना है कि यदि मैं कुछ गलत भी करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ आपने रोका क्यों नहीं है। भाई आप ही तो कराने वाले। जब कहते हैं आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर उसके जिम्मेदार भी तो आप ही हो ना। जो यदि मैंने कुछ गलत किया है, जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है, यही मैंने आज तक सीखा है। और कई बार लाइफ में ऐसा होता भी है कि मेरे कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि कुछ लोग तो मुझे इस तरह से ताना भी मारने लग जाते हैं, ले तेरे भगवान जी ने तेरा ये भी कर दिया, ले तेरे भगवान जी ने तेरा ये भी कर दिया। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान में पूरी तरीके से आप फुल्ली सरेंडर कर दो। फिर ये सोचो मत क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। बस वही हमारी नैया पार करा सकते हैं। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगी, दीन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साईं प्रसन्न होगा, मेरा साईं प्रसन्न होगा, मेरा साईं प्रसन्न होगा। साईं राम। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका